Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry class. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में तुम लोगों से बातचीत चल रही है। क्लास 3 का चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी हुई है। उम्मीद करती हूँ वो सारी चीज़ें तुम लोग कर रहे होगे और समझ में भी आ रही होगी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, हाइपोथेसिस है, नर्स इक्वेशन। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ हम एक्सरसाइज भी लेंगे जो कि नर्स इक्वेशन पे से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलिसिस से है और ईएमएफ ऑफ द सेल से भी है। तो आज के क्लास का मेन टॉपिक है नर्स इक्वेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस और इट्स इम्पोर्टेंस। दिस इज a very important principle given by the nurse and very important for the examination, for competitions and for intermediate. Now, electrode and cell potential. Given by the equation nurse known as Nernst equation. The electrode potential and the EMF of the cells depend upon the nature of the electrode, temperature, and the activities, that is concentration of the ions in solution. The variation of electrode and cell potential with concentration of ion in solution can be obtained from thermodynamics consideration. For general reactions such as M1A plus M2B and so on, N1X plus N2Y इसको हम ले लेते हैं plus so on, first reaction. Occurring in the cell, the Gibbs free energy change is given by the equation. Gibbs free energy change हमने पिछले जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बता रहे थे तब बताया था। डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 ए एक्स एन वन रिएक्शन से इंटू ए वाई एन टू अपॉन ये तुम्हारा रिएक्टेंट हो जाएगा ए एम वन इंटू ए बी एम टू, where A represents the activities of the reactants and products under a given set of conditions, and delta G refers to free energy change for the reaction when the various reactants and products are present at standard conditions. The free energy change of a cell reaction is related to the electrical work that can be obtained from the cell, that is delta G is equal to minus N Fe cell, and delta G0 is equal to N Fe0. E0 is the standard electrode potential. On substituting these values in equation second, we get minus NFE cell is equal to minus NFE0 0 cell plus 2.303 RT log 10 and AXN1 into AYN2 upon AAM1 into ABM2. Or this is written as E cell is equal to E0 cell minus 2303 RT upon NF log 10 AXN1 into AYN2 upon AAM1 into ABM2. This is the fourth equation. This equation is known as Nernst equation. Putting the value of R is equal to 8.314 kilojoule to the power minus 1 mole to the power minus 1. T degree is equal to 25 degree centigrade. Standard condition लेंगे 298 Kelvin. F you know 96,500 coulomb.
Equation fourth reduced to like this: E is equal to E0 minus 0.09591 upon n log 10 is equal to this. Now E is equal to E0 minus 0.0591 upon n log 10 Q. This is the Q is equal to this. Here Q is equal to mass action ratio. That is जो यहाँ पे फॉर्मूले में था AXN1 into AYN2 upon AAM1 into ABM2 is equal to products upon reactants mass action ratio. Now potential of single electrode, that is anode. पहले हम anode का देखेंगे. Consider the general oxidation reaction. M losing the electron form Mn plus and Ne electron lose किया. Applying Nernst equation. E oxidation means oxidation potential E is equal to E0 standard oxidation potential minus 0.0591 upon log n log 10 Q की जगह हो जाएगा Mn plus product upon M, that is reactant. Where E ox is the oxidation potential of the electrode, that is anode, E0 ox is the standard oxidation potential of electrode. A point to be noted: the concentration of pure solids and liquids are taken as unity, then E ox is equal to E ox 0 minus 0.0591 upon n log 10 under square bracket M n plus, this is active mass of product. Now potential of single electrode एनोड क्या हो गया, उसके बाद हम कैथोड पे आते हैं. कंसीडर द जनरल रिडक्शन रिएक्शन, जस्ट रिवर्स रिएक्शन. Mn प्लस आयन एन ई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होता है यहाँ पे कैथोड पे M में. अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, E रिडक्शन, दैट इज reduction standard reduction potential is equal, this is reduction potential of electrode. यहाँ पे चूंकि रिडक्शन हो रहा है, E reduction standard reduction potential minus 0.0591 upon log n log 10 into, this is the product upon reactant. और जो यूजिंग जब पहले दिखाया था कि यूनिटी हो जाएगा M जो है, तो E रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 M n प्लस, यहाँ पे हम इसको यूनिटी लेंगे तो ये Mn प्लस होगा सिर्फ. नाउ सेल पोटेंशियल, दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाल लिए. अब है सेल पोटेंशियल विच इज नोन एज EM of the cell. Cell potential depends upon the potentials of anode and cathode. E cell is equal to E anode plus E cathode. That is equal to oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode. Is equal to E anode हमने निकाला है E0OX minus 0.0591 upon, दोनों में ही n upon log 10 एनोइडिक आयन कंसंट्रेशन लेंगे यहाँ पे, प्लस E कैथोड E0 रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591 log n log 10 यहाँ पे कैथोडिक आयन कंसंट्रेशन. सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा E ऑक्स स्टैंडर्ड प्लस E रिडक्शन, दैट इज E ऑक्स oxidation potential, standard oxidation potential, this is standard reduction potential. So E0 ox plus E0 red minus 0.0591 upon n log 10 anodic ion concentration upon cathodic ionic concentration, that is E0 cell minus E0 cell हो जाएगा ये point any standard potential of cell minus 0.0591 upon n log 10, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ये अपॉन
reactants. Now let us consider a Daniell cell to explain the above equations. The concentration of the electrolytes are not 1 m. In Daniell cells, reaction takes place like this. ZnS plus Cu2 plus aqueous solution, और ये solid convert हो जाता है zinc ion aqueous में चला जाता है और copper reduce होता है. सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है Zn2 प्लस बीच में सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस aqueous Cu. This is the cell of, and this is the cell that is known as Daniell cell. Now potential of zinc electrode. Zinc electrode act as anode. Then the potential of zinc anode E oxidation potential is equal to E oxidation potential of standard oxidation potential of the electrode minus 0.0591 upon n log 10 Zn2 plus. यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn से Zn2 plus बन रहा है. This is the anoidic solution. पोटेंशियल एट कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाएगा. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कैथोड प्लस 0.0591 upon n log 10. This is the cathodic solution, that is Cu2 plus. Now Em of the cell. You know that the Em of the cell is equal to E cell is equal to E oxidation potential of the cell plus reduction potential of the, this is cathode, this is electrode. Now standard potential of E0 OX plus R. अब E cell is equal to, इसकी वैल्यू रखेंगे हम, E0 रिडक्शन माइनस इस पूरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस हो जाएगा. Now E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon n log 10 Zn2 plus upon Cu2 plus. The value of n is equal to 2. दोनों पे 2 plus चार्ज होता है. Then n is equal to 2 for both zinc and copper. Now let us consider an example in which the value of n for the two ions in the two half cells are not same. इसमें क्या था, value of n दोनों ions में same है, n is equal to 2. अब हम example लेते हैं जिसमें value of n for the two ions in the two half cells are not same. That is Cu2 plus in one solution, in another solution Ag plus 2Ag, यानी यहाँ पे n क्या है, 1 है. अब इसके लिए इक्वेशन किस तरह से होगा, द सेल रिएक्शन इज लाइक दिस. Cu हो जाएगा ये CuS से दोनों के बीच ये तुम्हारा हो जाएगा कैथोड और ये एनोड. तब यहाँ पे ये हो जाता है Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और ये 2Ag. दिस इज नॉट कैथोड. द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल हम जो दिखाएंगे वो इस तरह से होगा. कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है. द टू हाफ सेल्स रिएक्शंस आर, Cu से Cu2 प्लस बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन Ag प्लस लेकर के रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, कैथोड, और ये एनोड पे होगा. The second equation is multiplied by 2 to balance the number of electrons. इस रिएक्शन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag plus 2E आफ्टर रो हो जाएगा 2Ag. अब E ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसके लिए E0 ऑक्स माइनस 0.0591 अपॉन 2. अब यहाँ 2 ले सकते हैं हम, एन इक्वल टू log 10 Cu2 प्लस, और दूसरा जो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल हो गया फॉर द वन इलेक्ट्रोड एंड फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रोड Ag के लिए E रिडक्शन हो जाएगा. जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो क्या होता है, कैथोड, और ये होता है एनोड. तो E रेड 0 प्लस 0.0591 अपॉन 2 log 10 Ag
प्लस का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 से इसको यहाँ इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है, तो ये ए जी प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्स प्लस ई रेड इज इक्वल टू ई ऑक्स 0 प्लस ई रेड 0 माइनस, ये वैल्यू वही हो जाएगी log 10। अब ये Cu2 प्लस तो यही रहेगा, लेकिन Ag प्लस का होल स्क्वायर। नाउ E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon 2 log 10 Cu2 plus upon Ag plus 2। तो जब n सेम नहीं होगा तो इस तरह से दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके EM of the cell या E cell निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। और अगर सेम होगा तो जो जिंक और कॉपर के केस में देखा था उस तरीके से हम EM of the cell, EMF of the cell निकालेंगे। Now see the some example. Calculate the electrode potential at a copper electrode dipped in 0.1 m solution of copper sulfate at 25 degrees centigrade. The standard electrode potential of copper oblique copper ion oblique copper system is 0.34 volt at 298 Kelvin. Now solution is here. We know that अभी फार्मूला अभी हम देखते आ रहे हैं, E रिडक्शन इज इक्वल टू E0 रिडक्शन प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 और इंटू ये क्या होगा पॉइंट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E0 रिडक्शन कितना है 0.34V, n इज इक्वल टू 2, ये Cu2 प्लस इज इक्वल, इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.m। सारी वैल्यूज हम लिखेंगे तो ई रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगी हमको, E0 होता है पॉइंट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये, प्लस 0.0591 अपॉन 2 log 10 0.1। सॉल्व करने पे हमको ये सारी चीजें क्या मिलेंगी 0.31045B। तो कॉपी पेन लेकर के बैठना है और हल करते जाना है। नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन इलेक्ट्रोड इन विच जिंक आयन एक्टिविटी is 0.001 m, E0 Zn2 plus oblique Zn is equal to minus 0.76 volt, R is equal to this, and F is equal to 96,500 mole minus 1. Now see the solution. We know that E ox is equal to E0 ox minus 2.303 RT upon NF log 10 ion. Putting the value of R, T, N and F, we get F E ox is equal to E ox standard minus सारी values रखा हमने in log 10 zinc 2 plus। हमको क्या निकालना है यहाँ पे Zn2 प्लस दिया है 0.001 m, E स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76, तो E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू सारी वैल्यूज रखने पे कितना आ जाएगा 0.8486 वोल्ट। दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अनदर एग्जांपल, ज्यादा छोटा हो जाता है तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, 0.076 है। The standard oxidation potential of zinc is 0.76 volt and silver is minus 0.80 volt. Calculate the EMF of the cell. Cell is Zn NO3 whole twice. Concentration है nitrate zinc nitrate का 0.25 m। AgNO3 का concentration ये है, पूरा सेल इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। The cell reaction is Zn plus 2Ag plus, तो Ag reduce हो रहा है, zinc oxidize हो रहा है। E standard oxidation potential of Zn is given 0.76 volt and E standard reduction potential of Ag is 0.80
बी इज इवन, तो इसका रिडक्शन ही हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन. नाउ E0 cell is equal to standard potential of cell is equal to E0 oxidation of Zn plus E0 reduction potential of Ag, that is standard potential electrode potential of Ag. This is standard electrode potential of Zn is equal to 0.76 जो कि दिया हुआ है 0.80, ये हो जाएगा E standard potential of cell is equal to 1.56 volt. Now we know that E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon n log products upon reactants. Product upon reactants की वैल्यू अब यहाँ पे ये है 2Ag, तो Ag का क्या हो जाएगा, दो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दो बार मल्टी इस तरह से करेंगे इसको. Now putting all the values we get E cell is equal to 1.5187 volt. एक ही मेथड जानो तो ज़्यादा बेहतर होगा, हम अल्टरनेटिव मेथड नहीं बताएंगे. Now example another example, the EMF of the following cells are, ये दिया हुआ है Ag प्लस यानी सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, और ये कॉपर आयन से कॉपर में इसका रिडक्शन हो रहा है. दिस इज दी क्या होगा कैथोड, दिस इज एनोड. तो E0 यहाँ पे दिया है -0.46 वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड दिस फॉर द दिस रिएक्शन. और दूसरा सेल है Zn2 प्लस Cu2 प्लस से यहाँ Cu हो रहा है, तो E0 इसके लिए है प्लस 1.10 वोल्ट. कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल. अब ये दो अलग अलग दिया हुआ है, दो अलग अलग सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि EMF ऑफ द सेल दिए हुए हैं इन दोनों सेल के. अब ये दूसरा सेल दिखाया है जिसमें कि Zn और Ag को लिया गया है. Zn2 प्लस Ag प्लस से Ag हो रहा है, तो इसका जो है क्या हो EMF ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है Zn से Zn2 प्लस, तो सेम होगा ये. यहाँ पे क्या हो रहा है Ag प्लस से Ag हो रहा है, जो कि ये रिवर्स है. यहाँ पे Ag से Ag प्लस के लिए दिया हुआ है, तो साइन इसका रिवर्स हो जाएगा. E सेल इज इक्वल टू E oxidation Zn2 plus plus E reduction Ag plus to Ag. With the help of following two cells, the above equation can be obtained. Ag to Ag plus इसके लिए दिया है माइनस, यहाँ से Ag से Ag प्लस, तो Cu प्लस से Cu इसके लिए E0 है -0.46 वोल्ट. और अब इसको हम इस तरह से कर सकते हैं Cu2 Cu प्लस 1m इधर ले आए, Ag प्लस से इसको रिवर्स किया Ag, तो E0 कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में था यहाँ हो जाएगा प्लस में, प्लस 0.46 वोल्ट. और 0.46 is equal to E oxidation Cu to Cu2 plus plus E reduction Ag plus to Ag. साइन इसके अलग हो जाएंगे. नाउ Zn2 प्लस Cu2 प्लस के लिए क्या होगा, इसके लिए दिया आया अभी E0 इज इक्वल टू प्लस 110 वोल्ट. देन इसकी वैल्यू यहाँ रख के E ऑक्सीडेशन Zn2 प्लस प्लस E रिडक्शन Cu2 Cu. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1.56 इज इक्वल टू E ऑक्स Cu2 प्लस प्लस E रिडक्शन Ag प्लस टू Ag प्लस E ऑक्सीडेशन टू Zn2 प्लस प्लस E रिडक्शन Cu2 प्लस Cu. सारी चीजें जब हम रखेंगे तो E ऑक्सीडेशन Cu2 प्लस इज इक्वल टू रिडक्शन क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस 1.56 इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन. Thus the EMF of the cell Zn2 plus
इस सेल का जो उस सेल की मदद से हमने निकाला वो हो जाएगा प्लस 1.56 वोल्ट. Now calculate the EMF of the cell. MGS go to Mg2 plus. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन. इधर Ag प्लस से रिडक्शन हो रहा है Ag में. तो दिस इज दी कैथोड, दिस इज दी एनोड. गिवन E0 Ag प्लस टू Ag सेम है, दिया है प्लस 0.8 वोल्ट. एंड हियर दस रिवर्स इज गिवन Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg, जबकि यहाँ रिएक्शन है Mg2 प्लस, रिवर्स में है -2.37 वोल्ट. तो ये आगे जब हम निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा. What be the effect on EMF if concentration of Mg2 plus ion is decreased to 0.1 m? अब E cell is equal to, we know that E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. ये हो जाएगा E cell 0 3.17 वोल्ट, दोनों की वैल्यूज रखा. तो अब सेल रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, Mg, ओवरऑल रिएक्शन है Mg प्लस 2Ag प्लस. तो ये 2Ag प्लस Mg 2 प्लस हो रहा है, N इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 आयंस है यहाँ और इस पे 2 प्लस हो रहा है ये. तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग Mg2 प्लस अपॉन Ag प्लस होल स्क्वायर. सारी वैल्यूज रखा तो हमें E सेल मालूम हो गया. When Mg2 प्लस इज 0.1 होगा तब इसकी जगह हम 0.1 रख देंगे Mg2 प्लस की जगह, और बाकी चीजें सेम रहेंगी. तब ई सेल कितना हो जाएगा, 3.0323 वोल्ट. To find the standard potential of M3 plus oblique M electrode, the following cell is constituted. Platinum electrode होगा M2 M3 plus. सॉल्ट ब्रिज है यहाँ, ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ है. Ag plus का concentration and Ag oblique. The EMF of this cell is found to be 0.42 volt. Now calculate the standard potential of the half reaction. हाफ रिएक्शन M3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के M में कन्वर्ट होता है. और E0 Ag प्लस टू Ag, जस्ट Ag प्लस टू Ag दिया हुआ है 0.80 वोल्ट. Now see the solution. The cell reaction is Mg plus 3Ag plus 3Ag plus and Mg plus M3 plus. Applying Nernst equation. E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon 3 log M3 plus upon Ag. यहाँ पे 3 है प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट. 3Ag होल थ्राइस हो जाएगा. नाउ E cell is equal to 0.42 इज इक्वल टू E0 सेल माइनस, सारी वैल्यूज हमने रखा, M की वैल्यू जो है वही होगी, इसकी जो है क्यूब हो जाएगी. नाउ E0 सेल इज इक्वल टू 0.064. अब E0 सेल हमें निकालना है और यहाँ दिया हुआ है E सेल 0.42, तो ये हो जाएगा 0.48V. दैट इज E0 सेल इज इक्वल टू, अब क्या निकालना है हमें, E0 सेल यूज करेंगे फॉर्मूला E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. नाउ E0 एनोड निकालना है हमको, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये यहाँ मालूम किया हमने. तब E0 एनोड निकालना है तो ये हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 सेल, जो कि अब ये वैल्यूज रख करके हमको E0 एनोड यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड मालूम हो गई. Now see the another example, simple example, but it is important. Write the electrode reactions and the net cell reaction for the following cell. Which electrode would be the positive terminal in each cell? इस तरह से ये सेल दिए हैं, 1 by 1 हम देखते चलते हैं. पहला क्या है,
Zn2 प्लस Br माइनस से Br2, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज किया जाएगा क्योंकि ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है और नॉन मेटल है. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट सेल Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन Br2, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट होगा. अब नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? Zn प्लस Br2, Zn2 प्लस 2Br माइनस. पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा हुआ? कैथोड प्लेटिनम. अब ये दूसरा रिएक्शन है, दूसरा आगे दे करके नहीं बताया तो एक बार देखना पड़ेगा. Cr/Cr3 प्लस यानी क्रोमियम से क्रोमिक आयन बन रहा है, सॉल्ट ब्रिज आ गया. आयोडाइड से यहाँ पे आयोडीन से आयोडाइड बन रहा है लाइक दिस. एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड चीज नॉन मेटल होगा तब हम अनरिएक्टिव किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वहां पे हो जाएगा. Cr से Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया. बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. रिडक्शन हाफ रिएक्शन I2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आयोडीन में कन्वर्ट, आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है. इसको भी बैलेंस दोनों रिएक्शन को करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया. तो ओवरऑल रिएक्शन 2Cr प्लस 3I2, 2Cr3 प्लस 6I. तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? जहां पे कैथोड प्लेटिनम, जहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है. और निगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा? जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब उसके बाद अगला फिर से देखते हैं रिएक्शन क्या है. थर्ड है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है H2H प्लस सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस से Cu. तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन. अब इसको हम फिर से चलें नीचे. ये वाला हो गया थिंग. थर्ड रिएक्शन है H और कॉपर का. C पे जाना है हमें. यस. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन H2 से ये इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन बना रहा है. ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ रिएक्शन कॉपर लेकर के रिड्यूस हो रहा है. तो ओवरऑल रिएक्शन H2Cu2 प्लस Cu2 प्लस हो गया. तब इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा? कैथोड यानी कि कॉपर. अब उसके बाद लास्ट वाला रिएक्शन है, एक बार फिर इसको देखो कौन सा है. ये है कैडमियम 2 प्लस यानी Cd2 प्लस Cl गैस. यहाँ पे क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू AgCl टू रिड्यूस टू Ag. यहाँ AgCl से ये Ag में रिड्यूस हो जाता है, यानी यहाँ पे ये Ag प्लस आयन होगा और यहाँ क्लोराइड आयन कन्वर्ट होगा क्लोरीन में. तो लास्ट D है, इस पे आते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाता है Cd2 प्लस. एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन AgCl इलेक्ट्रॉन लेके Ag प्लस Cl माइनस इंटू, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेट रिएक्शन Cd प्लस 2AgCl, Cd2 प्लस 2Ag प्लस 2Cl माइनस. पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होगा? जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है यानी कि कैथोड Ag. तो ये जो सेल पिछला क्लास हुआ था उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और EMF ऑफ द सेल पढ़ा था, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है. Will Fe be oxidized to Fe2 plus by reaction with 1 MHCl? E0 for Fe/Fe2 plus, यानी क्या है इसका? ऑक्सीडेशन is plus 0.44 volt. The reaction will occur if Fe is oxidized to Fe2 plus. So Fe plus 2HCl
FeCl2 plus H2. Writing two half reactions, Fe2 converted Fe2 plus losing 2 electron. Oxidation E0 Fe2 Fe2 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 0.444. यहाँ रिडक्शन 2H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया. रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है 0. एडिंग तो दोनों को ऐड करेंगे तो EMF ऑफ द सेल मिलता है जो कि पॉजिटिव आ रहा है 0.44 वोल्ट. सिंस EMF positive, the reaction shall occur. Another example, the value of E0 of some of the reactions are given. ये सबकी वैल्यू दी हुई है. अब तो नहीं होना चाहिए ऐसा. The value of E0 for some of the reactions are I2. 2 इलेक्ट्रॉन लेके आयोडाइड आयन बनाता है. तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो रिडक्शन E0 इज इक्वल टू है प्लस 0.5 वोल्ट. NCl2 के लिए E0 फिर बारी बारी हम ये जो वैल्यू देखा है उसको लेकर के ऑन द बेसिस ऑफ एबम डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Whether Fe3 plus oxidize C3 plus or not. तो इन दोनों पे हम आएंगे. पहले Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज करेगा Ce3 प्लस को या नहीं. Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के जब Fe2 प्लस हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है तो उसके लिए E0 है प्लस 0.76 वोल्ट. और Cu4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ce3 प्लस जब बनाता है तो इसके लिए E0 है प्लस 1.6 वोल्ट. तो हमें पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है. केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए, Fe3 प्लस प्लस Ce3 प्लस, तो इसको Ce4 प्लस प्लस Fe2 प्लस, इस तरह का रिएक्शन. टू हाफ रिएक्शन लिख करके हम देखते हैं. Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe2 प्लस बना रहा है यहाँ, तो रिडक्शन हो रहा है E0 इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट. Ce3 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे C4 प्लस और इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है. तो रिडक्शन के लिए E0 कितना है 0.76 वोल्ट. और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, C4 प्लस बना रहा है. ऑक्सीडेशन E0 ऑक्स इसके लिए है इतना. दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है माइनस में. Since EMF is negative, the reaction does not occur. That is, Fe3 plus does not oxidize Ce3 plus. अब अगला क्वेश्चन क्या है, B. Whether I2 displaces chlorine from KCl. और क्लोरीन और KCl के जो रिएक्शंस दिए हैं उसको देखना पड़ेगा. क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बनाता है, इसके लिए E0 प्लस है 1.36 वोल्ट. कॉपी लेके आप इसे नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. उसके बाद दूसरा क्या है, आयोडीन. क्या क्वेश्चन था, Whether I2 displaces chlorine from KCl. और क्लोरीन के लिए क्या है, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और आयोडीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन बनाता है. और दोनों की E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.5 वोल्ट और इसके लिए प्लस 1.36 वोल्ट. अब इसका सॉल्यूशन देखो, बी पोर्शन.
केमिकल रिएक्शन I2 प्लस 2KCl, तो ये हो जाएगा 2Ki प्लस Cl2। ये होगा या नहीं होगा? रिएक्शन तो हम लिख सकते हैं, एक्चुअल में होगा या नहीं होगा इसे हम पूरा जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। हाफ रिएक्शन I2 से ये I2 2 इलेक्ट्रॉन लेके आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो गया, Cl 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में हो गया। अब रिडक्शन हो रहा है इसका आयोडीन का, इसके लिए E0 है 0.54 वोल्ट। अब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि वहां पे क्या दिया था, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन जस्ट रिवर्स माइनस में हो जाएगा इसका। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ रहा है -0.82 वोल्ट। Since EMF is negative, the reaction does not occur. That is, iodine does not replace Cl2 from Cl. Now, third portion of the question is whether the reaction between FeCl3 and SnCl2 occurs or not. Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Sn2 प्लस बनाता है, जिसके लिए एक्सटेंडेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.14 वोल्ट। यहाँ इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ Fe3 प्लस का भी रिडक्शन हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले करके। तो इसका जो है Fe दिया हुआ है +0.76 वोल्ट। C. Now see the chemical reactions. SnCl2 plus 2FeCl3, SnCl4, FeCl2, ये रिएक्शन होगा। अब ये होगा कि नहीं, Fe3 प्लस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2 प्लस, रिडक्शन हो रहा है, इसके लिए है E0.76 वोल्ट। यहाँ इसका इस तरह से रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब इसका जो वैल्यू दी हुई है E0 की, ये माइनस में आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू किसकी ज्यादा है, प्लस की, तो दोनों को ऐड करने पर ये आ रहा है 0.61 वोल्ट। सिंस EMF इज पॉजिटिव, द रिएक्शन विल ऑकर। Now construct the cell in which the following reactions are taking place. Which electrode shall act as anode and which one is cathode? पहला है Zn plus CuSO4, ZnSO4 और Cu, इसको कंस्ट्रक्ट कर चुके हो। दूसरा है Cu प्लस 2GnO3, तो CuNO3 2 प्लस 2Ag हो रहा है, ZnH2SO4, ZnSO4 2H2, and last is this. Up solution. It should always be kept in mind that the metal which goes into solution in the form of its ion undergoes oxidation and thus act as negative electrode, and the element which comes into the free state undergoes reduction and act as positive cathode. In the first case, this is the anode Zn and this is the cathode. In the second case, copper is oxidized to Cu2 plus and Ag plus is reduced to the Ag. The cell can be represented as CuNO3 and AgNO3 to Ag. तो Ag यहाँ पे कैथोड होगा और Cu जो है वो एनोड होगा। In the another case, Zn2 ZnSO4 solution में जा रहा है Zn, और in this case Zn oxidized to Zn2 plus and H plus is reduced to H2. The cell represented as Zn, ZnSO4 यानी Zn2 plus हो रहा है ये, और H plus से ये H2 में बदल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड और ये एनोड। तीसरे केस में Fe is oxidized to Fe2 plus and Sn2 plus is reduced to Sn. The cell is represented like this. This is cathode and this is anode. In this case, ये तुम्हारा हो गया, फिर से आ गया क्या इसका। Now see the another example. Consider the cell reaction.
Consider the cell reaction 2Ag plus plus Cd 2Ag plus Cd2 plus. The standard electrode potential for Ag plus to Ag and Cd2 plus to CD couples are 0.80 volt and minus 0.40 volt respectively. Now, what is the standard potential E0 for this reaction? And for the electrochemical cell in which this reaction takes place, which electrode is negative electrode? The half reactions are Ag plus to 2 electron 2 Ag. This is E0, Ag plus 2 Ag, 0.80 reduction potential. And in case of oxidation, E0 CD2 plus oblique CD is equal to minus 0.40 reduction potential, और E0 CD, अब इसको रिवर्स में जब हम ले जाएंगे CD to CD प्लस, तो ये प्लस में हो जाएगा. नाउ E0 इज इक्वल टू E0 CD CD2 प्लस प्लस E0 AG प्लस AG हो जाएगा 1.20 वोल्ट. In the second case, the negative electrode is always the electrode which was reduction potential a smaller value, or electrodes where oxidation occurs. Thus, CD electrode is the negative electrode. Now consider the reaction Zn2 Zn2 plus cell bridge and Cu2 plus to Cu. The standard electrode potentials are given here for the both Cu to Cu and Zn2. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn2 प्लस का भी जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. Write down the cell reaction, calculate the EMF of the cell. The reduction potential of Zn is less than copper, hence zinc act as anode and copper is cathode, like this. तो cell reaction इसका ये हो जाएगा. Second part, E0 cell is equal to E0 Zn Zn2 plus E0 Cu2 plus to Cu. That is oxidation potential of zinc plus reduction potential of copper. सारी वैल्यूज हमें दी है, जहाँ पे रिवर्स करना होगा रिवर्स करके हम वैल्यूज रखेंगे. तो E0 सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1.113 वोल्ट. तो इस तरह से ये एक्सरसाइज और नर्स्ड इक्वेशन, जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर का, नर्स्ड इक्वेशन, उसको यहाँ पे तुम लोगों ने अच्छे से समझा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज पहले बताई. उसके बाद ये EMF ऑफ द सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स को लेके सारी एक्सरसाइज थी जो अभी अभी सारे एग्जाम्पल देखे हैं. तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल तुम्हें बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे, उसको कर सकते हो. और ये सारे जो एग्जाम्पल अभी दिखाए उनको कॉपी में नोट करके और उसको सॉल्व भी करना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए.